let's start our chapter. We will start from the basic definition of software. As you already know, we can say that software is combination of small programs. यहाँ तक अभी आपने Recording in progress. Basic definition, that is the combination of small program, is called software. But software is not just a program. There are many things that must also included in the software. And what are that things? That are program, data, and documentations. These three things are combinedly called software. एक थोड़ी सी नई चीज आपको पता चली है आज कि software is not just a combination of small program, but it must include data and documentation as well. Program तो है, the coding to itself is a part of the software. Without coding तो software नहीं हो सकता ना. Software coding is the part of software, but data and documentation is also part of the software. How? Data कैसे part है software का? Data में क्या included है? Data include on which the program operates. अब coding है तो coding ने कुछ input तो लेनी है, coding ने after processing कुछ output तो return करनी है, ठीक है? In the form of input and in the form of output, we need data. For that purpose, you need to design data structure for that software, and that will be the part of the software. अगर आप data structure design करते हैं, data structure में क्या include होता है? आप एक separate पूरा course भी पढ़ेंगे about data structures, how to define the data structure of a software, and data structure will include what data the software will use in the form of input and what data the software will provide in the form of output. Okay? And that data will be the part of the software. जो सॉफ्टवेयर इनपुट की फॉर्म में लेगा और आउटपुट की फॉर्म में हमें रिटर्न करेगा, वो भी हमारे सॉफ्टवेयर का पार्ट है, एंड वी नीड टू डिजाइन दैट एज वेल. तो दैट्स व्हाई ये भी हमारे सॉफ्टवेयर का पोर्शन कहलाएगा. एंड द नेक्स्ट थिंग इज डॉक्यूमेंटेशन. मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्यूमेंटेशन इज द थिंग दैट मोस्ट ऑफ अस फॉरगेट. हम उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है? अब डॉक्यूमेंटेशन किस टाइप की जो सॉफ्टवेयर का पार्ट हो सकती है? All related document, for example, user manuals, installation manuals, and any other documentation that we prepare for our end user will also be part of the software. हम उसको software का part consider करेंगे. Program, data, and documentation. These three things combinedly will call a software. Now comes to the formal definition of software engineering. Last lecture में मैंने आपको informal introduction करवाया था. Like any other engineering discipline, software engineering is also an engineering discipline, and we need to learn that discipline so that we can prepare quality softwares. So हम यहाँ पर कुछ formal definition देखेंगे about software engineering. That is, software engineering is engineering branch associated with the development of software product using well-defined scientific principles, methods, and procedures. If you want quality software, you need to follow some procedures and methods, and software engineering provides us that principles and methods. हमें वो methods and principles जिनको follow करते हुए we can develop quality softwares, वो हमें software engineering provide करेगी, ठीक है? अब इतना तो आपको अंदाजा होगा ना कि मेथड्स क्या है, बनाने का तरीका, प्रोसीजर्स क्या है, आपने किन स्टेप्स को फॉलो करना है, किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, किन मेथड्स को फॉलो करते हुए आप एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट प्रोवाइड अस दैट डिसिप्लिन्स, प्रोसीजर्स एंड मेथड्स. The outcome of the software engineering is an efficient and reliable software. Means both combined. If we can define the quality की कोई पैड डेफिनेशन नहीं है. Quality is different from one customer to another customer. The point of view एक कस्टमर का दूसरे कस्टमर के point of view से different हो सकता है, ठीक है? Anything that the customer need is the quality for that customer. So we want efficient and reliable software. We want quality software. That's why we need to follow the software engineering principles and methods. Okay.
And what do you mean by reliable software? Any one of you? Any idea? What do you mean by reliable? You can raise your hands or unmute yourself. Any idea about reliable? आपने एक फेमस ब्रांड का स्लोगन तो सुना होगा ना, डॉलर्स रिलायबल है. क्यों कहते हैं जी हमारी प्रोडक्ट रिलायबल है? एनी आइडिया? मैम मे बी क्योंकि वो जो पर्सन का टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग बनी गई है. Reliability means the product will work in any condition, under any condition. Product जो है वो continuously working करेगी. Reliability का मतलब ये है without any errors, without any defects, the product will continuously work. ठीक है, ये मतलब होता है reliable का. So we want efficient and reliable software. In other words, we want quality software. That's why we need to follow principles, methods, and procedures of software engineering. Okay, because we want efficient and reliable software. There is another definition of software engineering. IEEE defines, IEEE is an institute that introduces the standards and procedures for software development. There are many standards related to the quality. Software की quality से related IEEE के बहुत सारे standards हैं जिनको हम follow करते हैं. तो IEEE define करता है कि software engineering क्या है? Software engineering is the application of systematic, disciplined and quantifiable approach. Okay? Systematic means we need to follow steps. We need to develop software step by step. Okay? हम step by step जो है वो software develop करते हैं, software engineering को follow करते हुए, and quantifiable approach. We can quantify everything during development process. But we can quantify the number of requirements, number of modules, we can quantify the number of defects, each and everything. Okay? So software engineering provides us the quantifiable approach both for development, operational, and maintenance. Maintenance is the activity that comes after the development. जब सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल हो जाता है, जब इन यूज आ जाता है और ऑपरेशनल होने के बाद अगर उसमें कोई डिफेक्ट आता है तो वो मेंटेनेंस में कवर होता है. ठीक है, तो मेंटेनेंस सर्विसेज भी सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोवाइड करता है कस्टमर को कि जब सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेशनल हो जाता है, ऑपरेशन मींस कि बन गया है और अब हमने उनको यूज करने के लिए दे दिया है, फिर भी हम उनको कहते हैं कि अगर आपको उसको इस्तेमाल करने के दौरान किसी डिफेक्ट का सामना करना पड़ता है या कोई एरर का सामना करना पड़ता है तो फिर उसको हमने ठीक करना होता है, करेक्ट करना होता है, एंड दैट एक्टिविटी कवर्ड इन मेंटेनेंस एक्टिविटी. ठीक है, तो मेंटेनेंस में ये सारे काम कवर होते हैं. तो ये दो फॉर्मल डेफिनेशंस हमने पढ़ी. तो इसके दोनों फॉर्मल डेफिनेशंस का कंक्लूजन क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग ब्रांच है जो हमें सिस्टमैटिकली क्वांटिफाइबल अप्रोच प्रोवाइड करती है, हमें वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स एंड डिसिप्लिन्स प्रोवाइड करती है सो दैट वी कैन डेवलप reliable and efficient software and we can provide the maintenance activity as well for the software. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें ये सारा तरीका प्रोवाइड करती है कि कैसे हम क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो है वो बना सकते हैं. ओके, व्हाट इज द वर्क प्रोडक्ट? ये वर्क प्रोडक्ट वर्ड जो है ना ये हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे. जब हम अपना डेवलपमेंट मॉडल्स पढ़ेंगे ना तो हम उसमें फ्रीक्वेंटली ये वर्ड यूज करेंगे वर्क प्रोडक्ट. अब यहाँ पे वर्क प्रोडक्ट जो है वो 2 पॉइंट ऑफ व्यू से जिक्र किया गया है. वन इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर and other point of view is customer or end user. वर्क प्रोडक्ट क्या है? अगर सिंपली मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं कहूंगी everything that is the result of any activity is called work product. Okay? सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहता है कि end of any activity which can be shared among the team members is called work product. It can be any program, it can be any prototype, it can be a single page report, it can be a module जो आपने काम किया है, ठीक है, और आप उसको अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं. उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क प्रोडक्ट कहेंगे कि काम का नतीजा ये निकला है.
हमने ये एक काम परफॉर्म किया, इस काम का एंड रिजल्ट ये है जिसको आप अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर वो चीज जो प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग डेवलपमेंट वो एक वर्क प्रोडक्ट है जिसको आप अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, बट एवरीथिंग कैन नॉट बी शेयर विद द कस्टमर, ठीक है। कस्टमर के लिए हर चीज अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो हम वो चीज जो कस्टमर को शेयर कर सकते हैं और वो हमें उसके बदले में फीडबैक दे सकता है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वर्क प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे हम कस्टमर के साथ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर शेयर कर सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर का डिजाइन उनके साथ शेयर कर सकते हैं, हम कोई प्रोटोटाइप बनाई है हम वो प्रोटोटाइप शेयर कर सकते हैं, हम कोड बनाया है हमने एक मॉड्यूल बनाया है हम मॉड्यूल की आउटपुट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग दैट कैन बी शेयर्ड विद द कस्टमर एंड कस्टमर कैन प्रोवाइड अस फ्रॉम दैट वर्क प्रोडक्ट, आपको फीडबैक दे सकता है, उसको हम वर्क प्रोडक्ट कहेंगे और ये वर्ड हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे अपनी डेवलपमेंट साइकिल के दौरान। Recording याद रखो stopped. क्वेश्चन, if you have any question you are free to ask. Any question class? No? Okay, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर डुअल रोल। Software play a dual Recording in role progress. in our life. How? Software is a product and it is a vehicle for delivering product. Okay? Software itself एक product भी है और ये product बनाने का जरिया भी है, ठीक है। Vehicle for product means vehicle for delivering product means it play a role of a medium so that the other products can be delivered. Software is a product क्या है? It can be used to transfer the data into the information, for managing the things, to modify and for computing potential. It can be used, आप जो है वो उसको हार्डवेयर पे यूज कर सकते हैं, जैसे आप वर्ड प्रोसेसर यूज करते हैं फॉर क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंटेशंस, आप पावर पॉइंट यूज करते हैं फॉर मेकिंग द स्लाइड्स, किसी काम को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो एज अ प्रोडक्ट it facilitates you so that you can manage your work, आप more easily जो है वो अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। बट as a vehicle ये other programs को कंट्रोल करता है, like operating system provide you services so that you can run other application on operating systems. आप ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोई भी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। एज अ नेटवर्क सॉफ्टवेयर itself a software है, but it facilitate you so that you can communicate with other devices. आप एक नेटवर्क सॉफ्टवेयर के थ्रू अदर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स एंड एनवायरनमेंट के तौर पे भी रोल प्ले करता है। लाइक देयर आर मेनी टूल्स दैट प्रोवाइड जो सर्विसेज या दैट facilitate you so that you can create other softwares. For example, you can install Android Studio to create an Android application. आपने अगर Android application बनानी है तो आप Android Studio install करोगे। Android Studio is also a software, but it facilitates you so that you can create other Android applications. If you want to create desktop application, web application, you need to install Visual Studio. Visual Studio is also a software, but it facilitates you so that you can create other applications. Okay, there are a variety of tools that provide to support during development. जैसे कि अभी हमने कहा कि हम प्रैक्टिकल में करेंगे डिजाइन लैंग्वेज, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज हमने डिजाइन में करनी है अपने इस कोर्स के अंदर। तो जब हम उसको करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स क्रिएट करेंगे और उन मॉडल्स को क्रिएट करने के लिए देयर आर वैरायटी ऑफ टूल्स दैट हेल्प यू फॉर द डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब ये टूल क्या है? टूल्स इटसेल्फ अ सॉफ्टवेयर, लेकिन वो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आप सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग कर सकें, आप सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट का काम कर सकें, ठीक है। तो ना सिर्फ ये आपको काम करने में फैसिलिटेट करता है बल्कि आपको अदर सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करने में भी हेल्प आउट करता है। तो ये डुअल रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। इट इज इटसेल्फ अ प्रोडक्ट एंड इट इज अ व्हीकल फॉर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट।
नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस. देयर आर वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स. बहुत सारी आपने पढ़ी भी होंगी. इंट्रोडक्शन जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, इंट्रोडक्टरी कोर्सेज पढ़े होंगे, उसमें आपने वैरायटी ऑफ टाइप्स पढ़ी होंगी. सारी की सारी तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, जो चंद एक यहाँ पे हैं हम उसको जरा क्विकली ओवरव्यू करेंगे. इसमें से बहुत सारी का आपको ऑलरेडी पता होगा. ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको इसका ओवरव्यू दूंगी कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो कौन कौन सी टाइप्स के हो सकते हैं. देखिए, जैसे आप अपनी रियल लाइफ में देखें, देयर आर मेनी थिंग्स, और हर चीज जो है वो सेम वे में प्रोड्यूस नहीं होती. उसका डेवलपमेंट प्रोसेस डिफरेंट होता है. चीज डिफरेंट है तो उसको बनाने का तरीका भी डिफरेंट होगा ना. तो देयर आर वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर्स. ठीक है, हम पहले उसको देखेंगे, फिर अगर सॉफ्टवेयर की टाइप चेंज होगी तो उसको बनाने का तरीका. प्रोडक्ट लाइन, वेब एप्लीकेशंस एंड एआई. तो जरा क्विकली इनको हम जो है वो देखते हैं. व्हाट आर these types of software. Just a second. First one is system software. Collection of programs written to service other programs, just like operating system. आपके ना सिर्फ ये हार्डवेयर कुछ होता है, बट ये अदर एप्लीकेशन को रन करने के लिए भी यूज होता है. ठीक है, तो वो सारी सॉफ्टवेयर्स जो कि नियर टू हार्डवेयर हैं और हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं. इसमें कंपाइलर जो है उसका क्या काम होता है? कंपाइलर ने आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है, जो कि मशीन अंडरस्टैंडेबल हो. ठीक है, आपके जितने भी इंटरप्रेटर हैं, कंपाइलर्स हैं, या आपके डिवाइस ड्राइवर्स हैं. डिवाइस ड्राइवर इटसेल्फ एक प्रोग्राम, स्मॉल प्रोग्राम होता है जो डिवाइस के साथ एसोसिएटेड होता है, और उसका क्या काम होता है कि उसने आपको हेल्प आउट करना होता है कि सो दैट यू कैन ऑपरेट द डिवाइस. ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड कंपाइलर्स, these are type of system softwares. The next one is application software. Application software that solve a specific business need. आप किसी specific task को perform करने के लिए इन applications को use करते हैं, like word processor है, Excel है, या किसी departmental store का जो inventory system है, या sales system है, या किसी बड़ी organization का HR system है. These are type of application software that are used for performing a specific task. ठीक है, इसकी भी फर्दर आपने कैटेगरीज पढ़ी होंगी. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी पैकेज सॉफ्टवेयर एंड कैन बी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं जो बने बनाए आपको मार्केट से मिल जाते हैं. आपको जनरल मार्केट की नीड को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं. और जो आपके कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं वो स्पेसिफिक यूजर की नीड्स के लिए होते हैं. Because these are complex software. complex क्यों है? क्योंकि इन्होंने large amount of data जो है वो प्रोसेस करना होता है. डेटा सेट जो होता है जिसकी इन्होंने प्रोसेसिंग करनी होती है वो बहुत बड़ा होता है. ठीक है, और इसके लिए जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो भी आम कंप्यूटर्स नहीं होते. हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं टू प्रोसेस दिस टाइप ऑफ डेटा सेट. और इस तरह के सॉफ्टवेयर के लिए हमें जो है मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स जो है वो चाहिए होते हैं. तो complex algorithms use होते हैं behind these software so that they can compute the large amount of data. For example, astronomy softwares, volcanology softwares that can control the shuttle orbital and molecular biology के अंदर use होते हैं. तो these are type of softwares जो कि scientists use करते हैं, जैसे कि नासा के softwares हैं. वो large amount of data जो है वो process करते हैं, computation perform करते हैं.
दीज आर डिफरेंट। अब साइंटिफिक सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका और एक सिंपल वर्ड प्रोसेसर्स बनाने का तरीका सेम तो नहीं ना हो सकता, कैटेगरी डिफरेंट है, उसका यूज डिफरेंट है, तो ज्यादा उसको बनाने का तरीका भी डिफरेंट होगा। और फॉर्मल अप्रोच जो है वो साइंटिफिक सॉफ्टवेयर के लिए यूज होगी एज कम्पेयर टू सिंपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। साइंटिफिक सॉफ्टवेयर जो है वो मोर फॉर्मली डेवलप होगा, सो दैट उसमें एरर के चांसेस जो है वो कम। And the next one is artificial intelligence software. ऐसी applications, software applications that are developed to behave like a human. हम उसको artificially intelligence provide करते हैं so that they can behave like a human being. They can think like a human being. Actually वो think नहीं करते, हमने इनको सारा का सारा नॉलेज प्रोवाइड किया होता है और उन्होंने उसी नॉलेज की प्रोसेसिंग करनी होती है, पर हमें ये लगता है कि जैसे एप्लीकेशन जो है वो इंटेलिजेंट है और जस्ट लाइक ह्यूमन बिहेव करिए, जैसे कि रोबोटिक्स है, एक्सपर्ट सिस्टम है, आपके मोबाइल्स के अंदर जो है वो वॉइस रिकॉग्निशन फीचर है, या हम जो फेस रिकॉग्निशन यूज करते हैं, दीज आर ऑल टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे फेस रिकॉग्निशन है, न्यूरल नेटवर्क्स उसमें यूज होते हैं दैट मेक द एप्लीकेशंस टू बिहेव लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। जैसे ह्यूमन ब्रेन कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन अ फीमेल फेस एंड अ मेल फेस। सिमिलरली हम एप्लीकेशन जो फेस रिकॉग्निशन एप्लीकेशन है, हम उसको इस काबिल बनाते हैं कि दे कैन रिकॉग्नाइज अ फीमेल फेस एंड अ मेल फेस, दे कैन डिफरेंशिएट बोथ। अब एक्चुअली होता क्या है कि इन सॉफ्टवेयर की बैकएंड पे हमने नॉलेज बेस क्रिएट करना होता है, ठीक है, और वो नॉलेज बेस इतना एक्सटेंसिव होता है, उसमें ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड होती है, और उसी से जो है वो ह्यूरिस्टिक क्रिएट करते हुए जो है वो कंक्लूड करते हुए एप्लीकेशन हमें रिजल्ट प्रोवाइड करती है, और हमें ऐसे फील होता है कि एप्लीकेशन जो है वो इंटेलिजेंट है और जस्ट लाइक ह्यूमन बिहेव करेगी। Recording Answer the stopped. question, class. Any question? No, ma'am. No, ma'am. Okay, good. अच्छा, आप ऐसा करें, मुझे ये क्लास अबाउट टू एंड है, आप मुझे रीज्वाइन करें और फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। रीज्वाइन दिस क्लास। Okay, ma'am.